So good afternoon, BMA members and friends. Lovely to see you all with a topic which is very unique. It is linked to management, but it brings a completely different flavor to the entire management era. I'm very proud to present Dr. Sanjay Gite. He himself is a music director, a poet, composer, musician, singer, multifaceted musical personality. However, what is unique about Gite Sahib is that he believes in healing and recharging life using music. He has studied music deeply, both from a theoretical as well as a practitioner. He believes that music restores the spiritual within you. Music has magical healing powers. We have been hearing about people like Tansing during Akbar's reign as one of his Navratnas, who could do magic with his music. This kind of fame he has achieved because he has composed and his compositions have been sung by great singers like Bharat Ratna, Lata Didi herself, Shankar Mahadevan, Suresh Wadkar, and a host of other very well-known singers. He currently is based in Nasik, where he has a source studio and is doing research in music. He feels it's a very powerful concept of mind power. That is what is his current passion and interest. He feels it is useful for all. Musical therapy can transform lives. It can transform lives of those who are stressed, those who need some succor, medical help, those who are undergoing any chronic ailments. There are various musical therapies available. But for the harassed manager of Mumbai, facing deadlines, facing work pressures, this will come as a surprise that there are instruments and musical swars, compositions, which can give you relief from our day-to-day life. So this is where I find this very unique, and I offer to allow our guest for the day. I'm very proud to present all the way from Nasik, Source Studios, Sanjay Gite. Sanjay ji, over to you, sir. Okay. Thank you so much, Suresh ji. I'm so happy today to introduce this very unique concept, because music therapy means usually we think that some classical raga will be there and somebody may feel to sleep, like I'm singing some rag darbari or some rag malkaus and all. So raga based is very important, no doubt. But what I am thinking, music is not only for some certain class people, it is for mass also. And second thing is that music is not for only entertainment. It is as like a vibratory medicine. So vibratory medicine, I purposely using this word because whenever we listen music, it starts working like a medicine. That's why we like it. As like a tasty food, whatever we like. So we always feel कि यार ये खाना चाहिए, ये तो बढ़िया है. तो उसके सोचने से भी हमें अच्छा लगता है. वैसे कई गाने ऐसे हैं कि उनको सोच के भी अच्छा लगता है. हाँ, या कोई पुराना गाना लगता है तो नॉस्टैल्जिक फील आता है, तो उसमें भी हमें अच्छा लगता है. तो उसका पूरा हिस्ट्री या म्यूजिक थेरेपी का क्या जो ओरिजिन है, उसके बारे में अपने इतने छोटे समय में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा. हम शुरू में कुछ गानों से शुरुआत करते हैं कि ज्यादा बोलना बेटर नहीं होगा. मेरी आवाज आ रही है सही? जी सर.
ओके, सबको आ रही है, बाकी सब लोग दिख नहीं रहे मुझे। अगर आप लोग ऑन स्क्रीन रहेंगे ना तो म्यूजिक बहुत मुश्किल है, सामने लोग नहीं रहेंगे तो। लक्ष्मी जी, सब लोग। यस सर। आशीष जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर भक्त नहीं रहा तो भगवान का कुछ काम नहीं, पेशेंट नहीं रहा तो डॉक्टर का कुछ काम नहीं, और ऑडियंस नहीं रहा तो फिर हम लोगों का कुछ काम नहीं रहेगा। लक्ष्मी जी थैंक यू, यस आशीष जी थैंक यू सो मच। और भी कुछ लोग अपना चेहरा दिखा सकते हैं। Request members to please put on your video because they want this feedback, and it's very important for an artist to see the audience and see the appreciation. So I understand that. So those of you who can, please put on your videos, please do so. Thank you. Yeah. So आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी आंसू भरी है ये जीवन की राह है, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। नैना बरसे रिम झिम रिम झिम, या तोरे आवन की नैना बरसे, नैना बरसे, नैना बरसे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा गए। ये मोह मोह के धागे मेरी उंगलियों से जाओगे। ओ तुझे याद कर गया मैं, ओ तुझे याद कर गया मैं, आयत की तरह तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, हो रहा ना फिर मैं अपने जैसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। नैना बरसे रिम झिम रिम झिम, नैना बरसे बरसे बरसे। तो ये गाने सुन के आपको मैंने ऑन स्क्रीन क्यों कहा था, तो इसका वजह, दीपा जी शायद ऑफ स्क्रीन चली गई है, तो मैं सोच रहा था कि ये गाने सुन के आपको क्या लगा, what are the feelings are coming when you listen few of the song. You can say sad song, for example नैना बरसे, आपके मन में क्या विचार आए, what do you feel, please tell. Anyone?
Actually, I So- felt some calmness, you know. I got some Yeah. peace. रिलीफ Okay. हुआ, रिलीफ हुआ, रिलीफ रिलीफ हुआ. ओके मैं तो विचारों में खो गया था. ओके. ये गाने मुझे कुछ पुरानी यादों में ले गए, जो अपने हम पे जो बीती है कभी कभी क्या पहले. बात है. एब्सोल्युटली. वाह, हितेश जी का जो आंसर है, मैं उस आंसर की उम्मीद कर रहा था. इसलिए अगर हितेश जी दिखे भी नहीं होते तो भी ये फ्लो हम अधूरा हो जाता था. तो हम कहीं पे चले गए थे, कहीं हम खो गए थे, राइट. तो ये जो खोना है, शायद हमें कभी दर्द महसूस होता है. हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमें कुछ सैडनेस फील होती है, महसूस होती है. मुझे खुद को क्या लगा, नैना बर से मुझे और वो एक गाना लता जी का, ओके, मुझे याद आया कि व्हेन माय फादर वाज ऑन डेथ बेड इन हिज लास्ट 2 days, I was listening few Lata ji's sad songs in that time, because my father was fond of Lata ji's voice and he was great music lover. He was singer also. तो मैंने आज ये अचानक ये नैना बरसा ये गाना मेरे मन में आया, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे पिताजी का जो कुछ लास्ट के कुछ क्षण थे, वो बहुत उसमें मेरे काफी सारी फीलिंग्स है, सैडनेस है, गिल्ट भी है कि मैं क्यों उन्हें और ज्यादा मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, और 2 साल तो आराम से पिताजी काट सकते थे, ये मैंने क्या किया है. ये फीलिंग ऑफ लिटिल गिल्ट, थोड़ा सैडनेस, ये इमोशन मेरे मन में आया. हितेश जी ने बताया, हितेश जी ने भी अगर कुछ सोचा इसके बारे में, तो कुछ हो सकता है सैडनेस होगा, या और कुछ छूट गया अपने हाथ से, फीलिंग ऑफ लॉस समथिंग, ऐसे कुछ हो सकता है. तो इन शॉर्ट, वन साइड ऑफ द कॉइन इज कि लाइफ में दुख है, दर्द है, आंसू भरी है जीवन की राहें, ये मैंने कहा. तो ये जीवन का दर्द है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ टेंशन है, कुछ तकलीफें है, एंड आई एक्सेप्ट कि यस, आई हैव सफरिंग्स. ह्यूमन लाइफ is having sufferings and we suffer. I accept, we may accept. Okay. तो मैं समझता हूं कि जीवन में दुख है, कुछ चीजें ऐसी है जो अपने हाथ में नहीं है, और we accept. Okay. यहां तक हम आ गए. अभी एग्जैक्टली काम क्या किया यहाँ पर, म्यूजिक ने क्या काम किया? तो मेरे मन में कुछ बात डीप गहराई में थी, वो सरफेस लेवल पर लाया, म्यूजिक ने उसको खींच के लाया. म्यूजिक, दिस सॉन्ग ब्रॉट इट अप, उसने उसको खोद के निकाला, राइट. तो हम इस म्यूजिक थेरेपी का उपयोग कैसे करेंगे? जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, ऐसा नहीं है जरूरी कि जब हम पॉजिटिव सॉन्ग सुनते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, तभी ही हम म्यूजिक थेरेपी का पॉजिटिव उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है. जब हम सैड सॉन्ग सुनते हैं, तभी भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है, क्योंकि वो इमोशंस निकलते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ कैथारसिस. that's Right? what. Sorry, I Right. meant that word only, catharsis. आपसे वो रिलीफ मैंने शब्द यूज किया, बट हाँ. आपने राइट शब्द बताया कि आई फेल्ट कैथार्टिक, कि भाई मुझ में जो भरा हुआ था भार सिर से, वो बह हाँ. गया अभी बार जब नैना बरसे. So great, so nice of you. So ये एक स्टेप हमने देखी, एक कैथारसिस से हम गुजरे हैं. अब इस दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेम तरीके से कोई शब्द आता है, नैना, ओके, और दूसरा शब्द आता है नाचना. अब बरसे आया, तरसे आया, तो अभी मन में आया झूमे, गाए, नाचे. वर्ड मेड डिफरेंस, राइट श्रावणी? वर्ड मेड डिफरेंस. अभी उस वर्ड में कुछ म्यूजिक ऐड हो जाता है, जैसे कि राइस है, उसके ऊपर दाल डाली तो कंप्लीट बन रहा है. वर्ड है, उसके अंदर कुछ म्यूजिक डाल दिया, तो उससे कुछ इमोशन आया. और इमोशन में पहली इमोशन हमने देखी, सैड इमोशन आई. अब हम देख रहे हैं पॉजिटिव इमोशन.
कैसे, जैसे अभी सपोज हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप लोग थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम होंगे कामयाब, रेडी 1 2 3, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम हम होंगे होंगे कामयाब एक दिन। राइट है, राइट। अभी वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, 2 3 4, वंदे मातरम। ठीक है, तो अभी हम जब इन गानों के साथ एसोसिएट होते हैं, अलाइन होते हैं, तो हमारे मन में एक पॉजिटिव इमोशन आती है, और ये पॉजिटिव इमोशन हमारा जो काम है उसको अच्छा ही करने की कोशिश करती है। जैसे हो सकता है कि ये गाना सुनने के बाद मैं जब रास्ते से चलूंगा तब मेरे मन में पैट्रियोटिक फीलिंग होगी, देश के प्रति अच्छा भाव होगा, तो कहीं रास्ते में अगर कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हो तो मैं उसको उठा के रख दूं, या कोई ओल्ड मैन जा रहा है तो उसको मैं हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस कर दूं, या कहीं पे कोई फ्लैग प्लास्टिक का स्टिकर पड़ा हुआ नीचे जमीन पे तो मैं उसको उठा लूं। कई तरीके से मेरा देश सेवा का भाव जो है, ये पॉजिटिव इमोशन जो है, उसको मैं एक्शन में ला सकता हूं, क्योंकि मेरी इमोशन निकल आई है किसकी वजह से, शब्द प्लस सुर इज इक्वल टू इमोशन। अब ये इमोशन बढ़ी है, ये पॉजिटिव इमोशन निकली है, तो पॉजिटिव इमोशन कैन लीड टू पॉजिटिव एक्शन। ओके, तो हम लाइफ में क्या चाहते हैं कि अच्छी एक्शन हो, अपने से अच्छा काम करें हम लाइफ में। श्रवण, तो ये पॉजिटिव इमोशंस की तरफ बढ़ते हुए हम देखें, which are positive emotions? Please tell me. Which are positive emotions? एक Yes, शेयर करूं जी। मुझे जब ये एक गाना, बहुत पुराना गाना है, जब मेरे को हाँ। ध्यान में आता है तभी मेरा मन एकदम ही अप हो जाता है। वो ये है, हाँ। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, क्या बात है, उड़ेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको कोई सॉन्ग आता है मन में, कोई और रिदमिक सॉन्ग आपके मन में आता है? इमोशन से लेके, पॉजिटिव इमोशन से लेके, या सी काय तू गडबड नको करू काहीतरी, बेसिकली विच आर पॉजिटिव इमोशंस, और कौन सी पॉजिटिव इमोशंस आप, यू कैन टेल मी, कौन सी? obviously that is one of the first one. So पल पल दिल के पास तुम रहती हो, है ना। फिर अगेन ब्रदरहुड, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। राइट, मतलब जैसे प्रेम है, लव, हैप्पीनेस, राइट, और ग्रेटफुलनेस, द ग्रैटिट्यूड, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशन, पॉजिटिव इमोशन इज ग्रैटिट्यूड, राइट। तो अब इसमें ग्रैटिट्यूड का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, या सेल्फ एस्टीम है अपना, वो सेल्फ एस्टीम हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जॉयफुलनेस किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ब्लिस कहाँ से आ सकती है, पीस कहाँ से मिल सकती है, हम अपने रिलेशंस में और उसे कैसे इंप्रूव करा सकते हैं। तो उसके लिए
यू वांट टू टेल एनीथिंग? ये सारी जो इमोशंस है, मेरी बेटी मुझे यहाँ पर हेल्प करने के लिए बैठी है, तो वो बीच में कुछ बता रही थी, तो मैं आई वाज जस्ट गोइंग देयर। तो ये सारे जो पॉजिटिव इमोशंस है, हमें इन्हें अपने जीवन में लाने के लिए हम किस तरह से संगीत का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता था आपसे। तो इसके लिए हम पहली चीज तो हम संगीत के साथ जुड़ेंगे, बी वन विथ म्यूजिक, राइट। दूसरी चीज, हम संगीत को अपने दिमाग से सुनेंगे, संगीत को अपने दिल से सुनेंगे, क्योंकि अगर हम संगीत के साथ एक नहीं हुए, ओशो बहुत सुंदर बात बताते थे, बी वन विद दैट सॉन्ग। तो हाउ टू बी वन विद समथिंग, दिस इज वेरी वंडरफुल। ही वाज टेलिंग इन हिज स्पीचेस कि हम अगर कहीं पर्वत के पास गए और वहां पर अगर हम चिल्लाए, कुछ साउंड लगाए, तो उसका इको आता है, राइट, उसका इको आता है। ये इको क्यों आ जाता है आसानी के साथ? क्योंकि वो जो पर्वत है या पहाड़ है, वो उसको सिर्फ रिपीट करता है, उसके बारे में सोचता नहीं है, वो स्क्रैच नहीं करता, सोचता नहीं दिमाग में, वो खाली उसको इको करता है। वैसे अगर हम म्यूजिक के साथ एक हो गए, तो उसका परिणाम स्वरूप कुछ अपने अंदर से इको आता है, रेजोनेंस आ जाता है। वो रेजोनेंस लाने के लिए हमें अपना माइंड जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। शुरू में हमने जो कैथारसिस की बात की, इट वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो अभी इसके लिए हमें म्यूजिक के साथ एक होने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस है, और जैसे हम म्यूजिक के साथ एक हो जाएंगे, तब हम ग्रैटिट्यूड का फीलिंग कैसे हम म्यूजिक के जरिए यूज कर सकते हैं, इसका आपको एक बेहतरीन एग्जांपल मैं देने वाला हूं कि आप लाइफ में कभी इस तरह से सोचे नहीं होंगे। इस तरह से एक अनोखा सॉन्ग मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं कि वो मैंने खुद कंपोज किया है, और उसको मुझे बहुत अच्छे लेवल पर अप्रिसिएशन आया है उसका, और उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। तो शुरू में हम हाउ टू बी वन विद द म्यूजिक, उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले हम कुछ सॉन्ग्स जो है, जैसे अभी इन्होंने बताया, वो कुछ पॉजिटिव सॉन्ग्स, आप मुझे फास्ट सॉन्ग कह सकते हैं, वो आप कुछ मुझे बताइए कि कोई गाना आपके दिमाग में हो, जैसे चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, 1 2 छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। इंद्रपाल जी, आप सभी लोग है ना, अभी आपको कोई जज नहीं करने वाला, नोबडी इज गोइंग टू जज यू कि कोई देख रहा है। आप अपने लिए गाइए, और अपने लिए आप ये रिदम में आने की कोशिश कीजिए। या चल छैया 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 जैया, जल जैया जैया जैया, चल जैया 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 जैया, जल जैया। आशीष जी आप भी, यस एवरीवन, सुरेश जी आप भी, जैसे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लंगडी ननाली लंगडी धरून लंगडी घालाया लागली, ना 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 ना, ढोल डोलते वाऱ्यावर बाई माझे, ढोल डोलते वाऱ्यावर, ढोल डोलते वाऱ्यावर माझे, ढोल डोलते वाऱ्यावर। ओ खंडोबाराया पडते मी पाया, तुझे भेटीला आणि नौकेला, ना 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 ना, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, डरडा डट डर डर डा 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 डर डर डट डर डर डा डा, चल छैया 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 छैया, 1 2 3 4, 1 2 3। ये मैं बार बार 1 पे क्यों आ रहा हूँ, कोई आप बता सकते हैं? Why I'm counting 1 again? See, like ढोल डोलते वाऱ्यावर बाई माझे, ढोल डोलते, we counting this. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पे क्यों आ रहा हूं मैं, आगे क्यों नहीं जाता मैं, कोई बता सकते हैं?
हितेश जी, सुरेश जी, Repeating rhythm. राइट, ये It's a साइकिल है, repeating rhythm. साइकिल। साइकिल, maintaining that position, high point, There's a Keeping- pattern. There's a keeping pattern that in high music. point, राइट, पैटर्न, keeping Ashish the ji- high point, keeping that high point with us. राइट, कीपिंग द हाई पॉइंट। इसमें बहुत कभी कभी ना बहुत छोटी चीजों में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये छोटी चीज क्या है कि दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट यार, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। हम कहीं पे प्रदक्षिणा को जाते हैं, जैसे हम सुनते हैं, आई थिंक नर्मदा परिक्रमा करते हैं, हाँ, या कोई भी परिक्रमा करते हैं, या मंदिर को हम राउंड लगाते हैं, तो हम स्टार्ट जहां पर किए वहां पर आके जब खत्म होता है तब हम समझते हैं कि ये कंप्लीट हुआ। तो ये बीट है, ये ऑर्बिट है, ये साइकिल है, राइट। तो ये इसका साइकिल जो ये कंप्लीट करता है, जैसे कि मतलब आप साइंटिफिकली मत लीजिए, फिलोसॉफिकली हम ये सोचते हैं कि सूरज जब सुबह ईस्ट दिशा में कहीं पे उगता है, दिखता है हमें, तो उसका साइकिल कब कंप्लीट होता है? कभी दूसरे दिन उगता है, दूसरे दिन सुबह, बराबर। सपोज आज 6 बजे उगता है तो कल सुबह 6 बजे, तो अभी समझो मैं 1 2 3 4 1 2 3, ये मेरा जो राइट हैंड है ये सूरज है, हाँ, और यहाँ पर 6 बजे है, राइट। 1 2 3 4 1 2, रात हो गई, सुबह हो गई, 1 दोपहर हो गई, रात हो गई, मिडनाइट हो गई, सुबह हो गई, 1 2 3 4 1। तो ये साइकिल, ये रिदम, ये जो हमारी यात्रा है, ये परिक्रमा है, ये जीवन चक्र है, ये साइकिल जो है कि आप जिसे ऋतु चक्र कह सकते हैं, ये हर चीज का एक चक्र है, हर चीज की एक साइकिल है। तो साइकिल इज द बेसिस ऑफ ऑल फेनोमेनॉन्स एंड ऑल फॉर्मूलाज ऑफ लाइफ। तो इसलिए ये फर्स्ट बीट है, ना 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 ना, चल छैया छैया जय, चल छैया छैया जय, पहचान की जगह है हमारी, हमारे आइडेंटिफिकेशन है, हमारे आई डेवलपमेंट की जगह, मैं हूं ये मुझे आजमाने की जगह है, ये मुझे जानने की, मुझे पहचानने की जगह है। देखिए, हम कभी किसी गांव गए, दिल्ली में गए, तो आप कोशिश करेंगे कि दिल्ली में आप उसी होटल में जाने की कोशिश करते हैं, होटल चेंज नहीं करेंगे बार बार। ओ लास्ट टाइम वो मैनेजर मिला था यार, वो बड़ा नेक इंसान था, आप उसी से हाय हेलो करेंगे। तो ये हमें बार बार ऐसी जगह हम चाहते हैं कि जहां पर हमें कुछ जानने की, रुकने की, विश्राम का अनुभव हो। तो ये पॉइंट है सम। तो इसलिए रिदम में आना ये बहुत जरूरी है। आप घर में एक मेट्रोनोम नाम का एक एप्लीकेशन आता है, प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो मेट्रोनोम, METRONOME, मेट्रोनोम, ये मेट्रोनोम नाम का एक एप्लीकेशन है। इसमें कई तरह के बीट्स है, आपको जो चाहिए वो बीट्स आप लगा के उसका टिक 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 टिक, ये अलग अलग, आपको कोई ग्रामर से लेना नहीं, आपको ये त्रिताल है क्या एक ताल है कि कौन सा ताल है, उस ग्रामर जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें उसका आनंद उठाना है, हमको म्यूजिक के साथ एक होना है। उस एक होने के लिए ये ताल ज्ञान, बेसिक ताल ज्ञान, ये क्लैप बजाने, कोई लोगों को मैंने देखा है वो ताल क्लैप भी ठीक से बजा नहीं पाते। जैसे अभी मैं एक में श्रावणी तेरा हाथ दिखा, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ हाथ दिखा, तुम्हें देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी हमारी दोनों की ताली जो है वो एक साथ बजती है। जब हम एक्चुअल सेशंस लेते हैं 50 लोगों के, कोई कॉर्पोरेट में लेते हैं, थिएटर में लेते हैं, तब 1000 2,000 5,000 लोग रहते हैं। एक बार मैंने कराड़ में एक सेशन लिया था, वहां पर 8000 यूथ थे मेरे इस सेशन में एक ही साथ। वो शिवम प्रतिष्ठान करके है, इसमें अभी नाना पाटेकर जी ने लास्ट वीक में उन्होंने उनके उन बच्चों के लिए सेशन किया। मैंने करीब 3-4 साल पहले किया था। तो एक साथ वो जो क्लैप गूंजती है,
तो ये 1 2 3 4 1 2, ये रिदम जानना बहुत जरूरी है आपको। अगर ये रिदम आता है तो आपका हार्ट बीट है, ये भी रिदम में है आपका। मेरे ख्याल से ये ईसीजी बोलते हैं और ब्रेन के इसको कुछ ईईजी बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर है क्या? कोई जानता है? राइट, यस 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 यस, हाँ, ईईजी समथिंग और हार्ट का ईसीजी समथिंग, राइट। और अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट भी तो है, वो भी एक ताल में है। इससे राइट, श्रावणी पानी तो ये सब जो है ये रिदमिक है। तो लाइफ का रिदम का उपयोग अपने जीवन में हमने अवेयरनेस के साथ करना चाहिए, मतलब चाहिए। फिर वो आपका मॉर्निंग वॉक भी क्यों ना हो, 1 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट व्हाटएवर। और मैं तो ये कहूंगा आपको ऐसे गाने लगाइए कि उन गानों के सुनो जोर से दुनिया वाला, चाहे जितने जोर लगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। 1 2 3 4 1 2। शुरू में आप स्लो गाना लगाइए, स्लो बीट पे चलिए 20 मिनट्स, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा के फिर 20 मिनट्स चलिए, और फिर लास्ट में ऐसे फास्ट गाने लगाइए। इसका भी मैं एक डिजाइन बना के देता हूँ लोगों को, मतलब कस्टमाइज। ओके, तो ये मैंने आपको रिदम के बारे में बताया। ये रिदम में आने की वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, या आपका ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग रेट है, हार्ट रेट है, मेटाबॉलिज्म है, वो सब चीज एक रेगुलर साइकिल में आने लगता है, क्योंकि एवरीथिंग इज साइकिल अगेन। हाँ, खून अपना ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, उसका भी एक साइकिल है। एवरीथिंग इज साइकिल। ओके, हमारे ब्रेन को कुछ मैसेजेस जाते हैं, फिर उसका वो रिप्लाई देता है, वो भी एक साइकिल है, वो भी एक रिदम है, वो भी एक साउंड है। तो अपने अंदर एक इनर ऑर्केस्ट्रा है। इनर ऑर्केस्ट्रा ऐसा है, जब अगर मुझे यहाँ चोट लगती है, यहाँ चोट लगती है, तो वो चोट हुई है, ये मैसेज मेरी अंदर की नसें ब्रेन को भेजती है मैसेज, वो इम्पल्सेस, और उसका कुछ साउंड है। काफी साइंटिस्ट लोगों ने वो साउंड को रिकॉर्ड किया है, उसको एम्पलीफाई किया है, तो उसमें लगता है कि वॉयलिन्स बज रहे हैं, ऐसे बज गया, लग रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, मेरा दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, समथिंग वॉयलिन्स की तरह। और फिर वहां जाने के बाद फिर वो उसका रिस्पॉन्स आता है, ढाटा ढाटा, उसका रिस्पॉन्स भी साउंड में आता है। फिर वो बोलता है कि वो हटाओ हाथ वहां से, रिफ्लेक्स एक्शन, वो हटाओ हाथ, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन आती है। ये सब ऑर्केस्ट्रा है, ये इनर ऑर्केस्ट्रा है। दूसरी बात सुर की बात है। जैसे कि हम किसी चीज को बोलते हैं, हो बोलिए आप सब लोग साथ में, ओ हो 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 साजन साजन, साजन 1 2 3 4 सी, साजन 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 देखिए करके देखिए, साजन। या आप कोई साजन आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, तस्नीम मैडम ने जल्दी से साजन आ जाओ बोल दिया है। देखिए अभी तक आवाज नहीं चल रही थी, अभी एकदम लाउड हो गई। संजय जी, you're so mesmerizing. थैंक यू। तो साजन बोलिए। साजन आशीष जी क्या बात है, बोलिए। सुरेश जी, साजन साजन आ जाओ, आ जाओ, अब देखिए, आ जाओ, आ जाओ। मेरा पॉइंट यही है कि अभी इसके साथ रिदम के साथ कुछ सुर आए हैं, उसका कुछ नोट का पोजीशन है, जैसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
ये डिफरेंट सुर है, उनकी डिफरेंट पोजीशन है। जब ये सुर आते हैं तो हम नेचुरली सब लोग साथ में जब गाते हैं, जैसे प्रेयर गाते हैं या नेशनल एंथम गाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं, हम अपनी आवाज, हम गाते भी है, हम बोलते भी है, हम सुनते भी है, और मैं सुरेश जी के, इंद्रजीत जी के, तस्नीम जी के साथ में हूं कि नहीं, ये मैं कंफर्म भी करते रहता हूँ साइमल्टेनियसली। वे हम लोगों को स्कूल में एक प्रार्थना थी, सद्गुरु नाथा हाथ जोड़ी तो, या जय हे। तो ये गाते हुए हम गाते भी है, हम सुनते भी है, और हम अपनी आवाज औरों के आवाज में मिलाते भी है, राइट। तो ये जो भी काम ये किया हमने, ये काम हमारे नॉर्मल लाइफ में हम ये काम नहीं करते हैं, लिखते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, ये काम हम कभी नहीं करते हैं। ये काम हमने अपने जीवन से अलग कुछ काम किया है, विच इज बियॉन्ड वर्क ऑफ आवर ब्रेन, विच इज बियॉन्ड ऑल फिल्टर्स ऑफ लॉजिक। ये काम जो हुआ, ये सब सोल एक्टिव काम है। ये सोल एक्टिव एक्टिविटीज है, वो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन उनका काम शुरू हो जाता है। इसलिए अगर सत्संग में लोग जाते हैं तो वहां पर वो महाराज क्या बताते हैं उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो लोग भजन गाते हैं, ताल देते हैं, कोई नाचते हैं, तो उनमें वो ब्लिसफुलनेस, नेचुरली मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, दैट कामनेस आ जाती है, और कामनेस ब्रिंग्स दैट एनर्जी, राइट। और फिर वो इंटीग्रिटी आती है मन में। जैसे इंटीग्रिटी आती है तो मन में अपने लिए सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, मैं अच्छा हूं, ये भाव बढ़ता है। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान सुसाइड करते हैं। 2 मिनट में आपका दो मिनट का समय लेता हूं। आप साम टीवी करके एक चैनल है, या जी 24 आवर्स का एक चैनल है, उन पर मेरे कुछ प्रोग्राम्स है। मैंने किसानों के लिए कुछ खास काम किया है, उनके गांव में जाके उनकी लैंग्वेज में बात करके मैं उनको म्यूजिक थेरेपी के द्वारा, ये ऐसा एनालिसिस मैं उनको नहीं बताता, उनको मैं सिर्फ काम को लगाता हूँ, साथ में गाने को लगाता हूँ, और पूरे साइकोलॉजिकल ढंग से मैंने वो गाने बनाए हैं। उनकी मन की आंखें मैं खोलता हूँ, धीरे 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 उनको साथ में लेता हूँ, और उनके मन में जो अपराध का भाव है, जो लो फीलिंग है, उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ताकि उन्हें लगे कि आई एम वर्थ, अरे मैं इतना भी बुरा नहीं हूं यार। सब लोग मुझे टोकते हैं, ये खेत नहीं आया, फसल नहीं उगी, इसमें पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, ये कर्जे का मेरा इंस्टॉलमेंट में नहीं दे पाया, महंगाई बहुत बढ़ गई, सारे निगेटिव चीजों में उसको एक अपनी खुद की एक आवाज, पॉजिटिव आवाज जैसे ही आती है, रोशनी का एक किरण है ना, वो सफिशिएंट है, वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैल जाता है। अंधेरे में सिर्फ एक उम्मीद चाहिए। तो बड़े बड़े लोगों ने आज तक सुसाइड किया है, तो ये रोशनी की एक किरण है ना, इसका एक्सप्लेनेशन हम ऐसी बातों में, लेक्चर में कितना भी देंगे, लेकिन म्यूजिक के जरिए बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसलिए हमने ये बात कही है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, कि ये ताल सुर, आप अगर इसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप संगीत के साथ एक हो जाएंगे। अभी हम पॉजिटिव इमोशन क्रिएट करने वाले कुछ सॉन्ग्स का मैं आपको एग्जांपल दे रहा है, जैसे कि कानपुरा लाओ ना यार। धक 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 दिल ये मेरा धड़कता ही रह जाए, हाँ हृदय का आभारी हूं मैं। हम ये बात कह रहे हैं कि मैंने कविता जी को थैंक यू कह दिया, थैंक यू कविता जी कि आपने मेरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं सुरेश जी को थैंक यू कह दिया, थैंक यू सुरेश जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी इन वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड्स। मैंने तस्नीम जी को थैंक यू कह दिया कि आपने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। मैंने हितेश जी को थैंक यू कह दिया कि उन्होंने बढ़िया कुछ गाना मुझे सुनाया। मैं सबको थैंक यू, मेरी वाइफ को मैंने थैंक यू बोल दिया कि अच्छा हो गया 4 दिन तुम मायके चलेगी, तो मुझे बड़ी शांति मिली। जस्ट जोकिंग। या मैं और आप जीवन में थैंक यू सबको बोलते हैं,
लेकिन हम आज कोशिश करेंगे एक ऐसी चीज की कि हम अपने हृदय को धन्यवाद करेंगे। क्यों करेंगे? वो दिन रात चल रहा है और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं करता हूं सब कुछ, मेरे मसल में पावर है, मेरे दिमाग में शक्ति है, मेरा ब्रेन, मेरा पैसा, मेरा नॉलेज, मेरी विजडम, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ये अपना हृदय जो चलता है, ये मैं नहीं चलाता हूं, आप चलाते हैं आपका हृदय? मैं चलाता हूं, पता नहीं। मैं रात को मेरे घर का दरवाजा बंद करता हूं, फिर मेरे बेडरूम की लाइट बंद करता हूं और फिर मेरा हृदय बंद करके फिर सो जाता हूं। होता है ऐसे? आशीष जी, इज इट पॉसिबल? दीपा जी? No, not possible. ऐसे हमारी 95% लाइफ तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, लाइफ इज कितनी आसान ऑटोमेटिक। बात है। हाँ, ये क्या, दरवाजा बंद कर दिया, फिर लाइट बंद कर दिया, बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया, फिर तिजोरी बंद कर दी और फिर आंखें बंद कर दी और फिर हृदय भी बंद कर दिया और सो गया। नहीं, ये ऑटोमेटिक मतलब क्या है? ये क्या है? तो इसके लिए हमें ये जो इनर म्यूजिक है, ये जो इनर ऑर्केस्ट्रा है, इसके साथ जुड़ना है। फिर उसको आप कुछ भी नाम दीजिए, कोई जरूरी नहीं, किसी भगवान का नाम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चैतन्य को अवेयरनेस के साथ आगे जाना है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। हम संगीत को अपना ईश्वर मान चुके हैं, संगीत को ईश्वर मान चुके हैं। संगीत बाबा जैसे होता है ना, ये बाबा वो बाबा होता है, दादा बाबा, जैसे संगीत बाबा, सुर बाबा बोल देंगे। चलो फिर क्या बोले? धक 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 दिल मेरा धड़कता ही रह जाए, हाँ हृदय का आभारी हूं मैं। आप सब लोग ये लाइन प्लीज गाइए। हाँ, ये हाथ रखिए, हृदय का आभारी हूं मैं। बोलिए। हाँ हृदय का आभारी हूँ मैं। सबका मुझे आवाज सुनना है। आशीष जी। हाँ, हृदय का आभारी हूँ मैं। नो नो, डोंट बी फॉर्मल, दिल से आप आंख बंद करके, हम कम लोग हैं संख्या में। हाँ, हृदय का आभारी हूँ मैं। और ये आप दिल से उस कोशिश करो कि अरे सच में मैंने कभी थैंक यू बोला है। आप लोगों ने बोला होगा शायद, आप में से किसी ने बोला है कि हार्ट को थैंक यू बोला है? यस और नो? नहीं। ओके, चलो, मतलब मुझे मौका मिला है, आपके दिल को छूने का मौका मिला है। तो ये आप 1 बाय 1 कीजिए। रितेश जी, आंख बंद कीजिए, हाथ छाती पे रख के उसको पहले ओरली बोलिए कि थैंक यू, मन ही मन बोलिए और फिर लाइन गाइए। हाँ, हृदय का आभारी हूँ मैं। क्या बात है, वाह, आया, अंदर से आया। तस्नीम जी। हृदय की आभारी हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इंद्रपाल जी। Heart is the left hand side. She is holding right hand. वो I could hear the heartbeats. इंद्रपाल जी आप ऑडिटर लगते हैं। ओके इंद्रपाल जी। हाँ जी। हाँ, हृदय का आभारी हूँ मैं। ओके ग्रेट। Not good one, but I'll try to get better. ओके सुरेश जी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो हमने अभी इस हृदय से शुरुआत की है। धक धक दिल ये मेरा धड़कता ही रह जाए, हृदय का आभारी हूँ मैं। सन 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 बहता खून मेरी ही नस नस में, सड़ 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 वाहे रक्त साऱ्या शरीरा मधुनी।
सन 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 बहता खून मेरी ही नस नस में, हाँ खून का आभारी हूँ मैं, हाँ खून का आभारी हूँ मैं। बोलिए अभी खून का आभार प्रकट कीजिए। वन बाय वन। खून का आभारी हूँ मैं। वन बाय वन प्लीज। सुरेश जी नहीं छोड़ेंगे नहीं हम आपको। अरे बाप रे, खून का आभारी हूँ मैं। वाह आशीष जी। हाँ खून का आभारी हूँ मैं। वेरी अरुण जी। गुड। खून का आभारी हूँ मैं। वेरी गुड। तस्लीम जी। खून की आभारी हूँ मैं। वेरी गुड। इंद्रपाल जी। हाँ खून का आभारी हूँ मैं। सुरेश जी। खून का आभारी हूँ मैं। एब्सोल्युटली। इसको हम करते रहेंगे। अभी तो चलो थोड़ा फॉर्मल हो गया, आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन पे है, लेकिन आप बाद में इसे करना, रिकलेक्ट करना। फिर आगे जाते हैं। इन आंखों ने दिखलाया है, इन आंखों ने दिखलाया सुंदर जीवन मेरा, या डोळांनी दाखवला मज निसर्ग हा नटलेला, ही झाडे ही पाने हे डोंगर नदी नाले, ही आई हे बाबा हे पक्षी हे नटलेले, इन आंखों ने दिखलाया सुंदर जीवन मेरा, आंखों का आभारी हूँ मैं। आंखों का आभारी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जिस पल आप अगर दिल से आंखों के आभार प्रकट करते हैं, उसी पल आपके आंखों में से हल्का सा एक, बोलेंगे जैसे एक पानी, हल्का सा वेटनेस आपकी आंखों में आ ही जाता है। और ल्यूब्रिकेशन है ना, वो रिस्पॉन्ड करता है अपने को, क्योंकि उसको भी अपनी लैंग्वेज समझती है। देखिए आप, जैसे हम किसी को आई लव यू बोलते हुए अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो आवर वर्ड्स आर associated with or which each and every part of our body. All this is neurochemistry. इसलिए है हाँ आंखों का आभारी हूँ मैं। जैसे आप ध्यान मुद्रा में या क्या बोलते हैं उसको, क्या है निद्रा, योग निद्रा में आप एक एक अवयव को आभार प्रकट करते हैं ना, उस वक्त आप आंखों की तरफ बढ़ते हैं। वो अवस्था में जाकर आप ये लाइन गाएंगे, भले मन ही मन गाइए, तो यू विल फील दैट कि यस मेरे आंखों ने रिस्पॉन्ड किया है। इसी तरह मेरे एक प्रोग्राम में, मैंने पुणे में बाल गंधर्व करके एक थिएटर है, वहां पर मैंने 2014 में इसका कॉन्सर्ट किया था। मैं इसका वर्कशॉप भी करता हूं और कॉन्सर्ट भी करता हूं। तो उसमें एक पोस्टमैन मुझे मिले थे, और इसमें एक लाइन है कि मैं पाँव का आभारी हूँ, मी पायांचा आभारी आहे। तो वो बोल रहे थे कि मैं बहुत साइकिल चलाता हूँ, वो टपाल, वो पोस्ट पहुंचाने के लिए। 18 साल से मैं साइकिल चला रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी मेरे पैरों को थैंक यू आज तक नहीं बोला। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो आपने मेरे पैरों की आंखें खोली। तो मेरे पैरों ने, मेरे कदमों ने कितना काम किया है। ट्रेन पकड़ते हुए मैंने कितना दौड़ा हूँ, मैं कितना चला हूँ, राइट, या मैं कितनी देर तक कितनी सीढ़ियां चढ़ा हूँ, दौड़ा हूँ, राइट। तो आज मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे पाँव का आभारी हूँ, हाँ पैरों का आभारी हूँ मैं। आप इस भाव को प्रकट कीजिए, सारा ध्यान अपने पैरों पर लीजिए, मन ही मन आप पैरों की तरफ बढ़िए। आपके पैर, आपके नाखून, आपके पैरों की उंगलियां, वहां से फिर आपके घुटने, थाइस तक आप
ध्यान लेके जाइए और बोलिए कि यस, थैंक यू, आई लव यू, माई लेफ्ट लेग, माई राइट लेग, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ। हाँ, पाँव का आभारी हूँ मैं, हाँ, पैरों का आभारी हूँ मैं। इस तरह से मैं पूरे शरीर में, जैसे अभी इन कानों ने मधुर मधुर संगीत मुझे है सुनाया, इन कानों ने मधुर मधुर संगीत है सुनाया, हाँ, कानों का आभारी आभारी हूँ हूँ मैं। क्या बात है, अब सब लोग तो गाने लगे हैं। अरे भाई, कान नहीं होते तो हमको सुनाई नहीं पड़ता, अभी आधा सुनना आता है हमको। अगर हियरिंग टेस्ट लेंगे तो हमारा 50% हो गया हियरिंग, अभी वी हैव लॉस्ट हाफ ऑफ ईयर, तो उसका इतना का तो आभारी रहेंगे तो ये आगे चलेगा। नहीं, हियरिंग एबिलिटी बढ़ेंगी आपकी, मैं आपको बोलता हूँ। बढ़नी चाहिए। या न्यूरोकेमिस्ट्री काम करती है, जब आप उसको थैंक यू बोलेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा आपको। एटलीस्ट खराब तो नहीं होगी, और तो आगे किया। पक्का पक्का। इस तरह से मैं पेट का आभार प्रकट करता हूँ, मैं मेरे सांसों का आभार प्रकट करता हूँ। जैसे सांसों का आभारी हूँ, ये सांसें मेरी चल रही है, इन सांसों ने मुझको जीवन है दिलाया, इन सांसों ने मुझको जीवन है दिलाया, सांसों की आभारी हूँ मैं। क्या बात है, ग्रेट, वेरी गुड। इस तरह से ये ग्रैटिट्यूड का मैं आपको एक आउटलाइन दिखा रहा हूँ आज, क्योंकि आज इतना ही हो सकता है, आगे फिर देखेंगे, कुछ मौका आया तो 1-to-1 भी हम कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये जब मैं किसानों के लिए करता हूँ, किसानों के लिए मैंने मराठी में जब मैं करता हूँ, तब मैं उनको बोलता हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है क्या? तो काफी किसान बोलते कुछ नहीं है साहब, मेरे पास पैसा नहीं है, घर भी गिर गया है। फिर और किसी को वो बोलता है खेत में कुछ अनाज नहीं, क्या करेंगे, कुछ नहीं है मेरे पास। सब लोग बोलते मेरे पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तब मैं उनको बोलता हूँ कि आपके पास के शहर में कुछ शहर में मेडिकल शॉप देखा है क्या आपने? वो बोलते हाँ है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि उस मेडिकल में आंखें मिलती है क्या? बोलते नहीं मिलती है। फिर मैं उनको पूछता हूँ कोई ऐसा शॉप है कि वहां पर हाथ मिलता है या पैर मिलता है? मैं आपको पैसे देता हूँ, आप जाकर परचेस करके लाइए। तो बोलते नहीं, नहीं मिलता है। फिर मैं उनको बोलता हूँ कि कान मिलते हैं कहीं होंगे तो लेके आओ, मैं पैसा देता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मैं आपको गाने सुनाने आया हूँ। तो धीरे धीरे मैं उनको रियलाइज कराता हूँ कि ये चीजें तेरे पास है, तो कैसे बोल सकते मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरा एकदम सिंपल लॉजिक है, सुसाइडल थॉट जब लोगों को आते हैं, बहुत सिंपल थॉट है कि मेरी सांसें चल रही है। ट्रैक्टर किस पे चलता है? डीजल पे चलता है। और ट्रैक्टर किस पे चलता है? व्हील्स पे चलता है। बुलेट किस पे चलती है? पेट्रोल पे चलता है। डीजल का दाम क्या है? 110 रुपए लीटर। पेट्रोल का दाम क्या है? 120 रुपए लीटर। ओके, आप किस पर चलते हैं? पैर किस पर चलते हैं? सांसों पर। सांसों का रेट क्या है? क्या रेट है सांसों का? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, फ्री में है। तो सबसे अहम चीज जो है वो फ्री में है और आप टेंशन ले रहे हैं। तो जब तक कोई आकर आपकी सांसें बंद ना कर दे, तब तक टेंशन का कोई काम ही नहीं। चलो लोन हो गया, होने दो, क्या हुआ? सांस बंद हुई? नहीं। बेटी की शादी नहीं हुई? ओके, कम कर। बेटी की शादी ना होने से आपकी सांसें चालू है या बंद है? शादी नहीं हुई, सांस चालू है। ओके, बारिश नहीं आई, सांसें चालू है। ओके, ऑल राइट, नथिंग टू वरी। ये बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है।
और आई एम सो लकी, भगवान की दया से मुझे ये इच्छा हुई कि मैं कुछ 5 लोगों के लिए लाइफ में भी रियलाइजेशन लाऊंगा। तो भगवान ने मुझे ये भरोसा दिया कि जाओ तुम कुछ काम करो। ये रियलाइजेशन मुझे हुआ क्योंकि मैं इस ऐसे सारे ख्यालों से गुजर चुका हूँ, इन रास्तों से जा चुका हूँ। तो मेरे पास ऐसे कई किसान हैं। आप शाम टीवी पे जाके शेतकरी जिंदाबाद बाय संजय गीता ऐसा डालिए तो शाम टीवी पे आएगा, या मुझे अगर आपके नंबर्स डेटा मिला तो मैं आपको सबको ये सारे लिंक्स भेजूंगा। तो इन गानों ने काफी परिवर्तन किया है लाइफ में। ओके, अब एक दूसरा मैं चीज, एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बोलता हूँ कि एफर्मेशन, हम लोग हमेशा सुनते हैं एफर्मेशन लेने चाहिए, लेकिन हम में से 10% लोग हैं उस चीज को यूज करते हैं। जैसे बढ़ने लगा आत्मविश्वास मेरा, मुझ पे है मुझको भरोसा है मेरा, बढ़ने लगा आत्मविश्वास मेरा। श्रावणी म्हण जरा या स्क्रीन जवळ म्हण, 1 2 3 1 2, बढ़ने लगा आत्मविश्वास मेरा, लगा आत्मविश्वास मेरा, मेरा है खुद पर भरोसा है मेरा, मेरा है खुद पर भरोसा है मेरा, मैं शांत हूँ मैं आनंदी, मैं शांत हूँ मैं हूँ आनंदी, मैं शांत हूँ और मैं हूँ आनंदी। कम क्लोजर। मैं शांत हूँ और मैं हूँ आनंदी, मेरा वजन नियंत्रित है ये, मेरा वजन नियंत्रित है, मेरा वजन काबू में मेरे, काबू में मेरे, आरोग्य मेरा मजबूत है ये, आरोग्य मेरा मजबूत है ये, मी शक्ती आहे मी आनंद आहे, शक्ति आहे मी मैं आनंद आहे, सहज गाढ येते मला झोप आता, येते आता, सहज गहरी नींद मुझको है आती, सहज गहरी नींद मुझको है आती, मी यशस्वी आहे मी आनंदी आहे, मी यशस्वी आहे मी आनंदी आहे, निरोगी आहे मी, निरोगी आहे, I am happy, I am happy, I am power, I am power, I am peace, I am peace, I am love, I am love, I am peace, I am power, I am peace, I am I am power. power, I am love forever, I am love forever, I am power, I am peace, I am power, I am peace, I am health, I am wealth, I am health, I am wealth,
bliss. I am bliss. I am peace. I am peace. I am happy. I am happy. I am Shanti. I am Shanti. I am Shakti. I am Shakti. आंखें बंद करेंगे. I am Shanti. I am Shanti. I am Shakti. I am Shakti. I am Shanti. I am Shanti. I am Shakti. I am Shakti. I am healthy. I am happy. I am happy. I am happy. Okay. Very good. तो इसमें ये एफर्मेशंस हम लोग हमेशा रूटीन में लेते नहीं. इसके लिए भी मैंने एक उपाय किया है. कैसा उपाय किया है कि फॉर एग्जांपल अपने ग्रुप में कोई मोना नाम की लेडी है फॉर एग्जांपल, तो हम उनके लिए मोना का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं. जैसे मोना को क्या आदत है कि खुद को कोसना, खुद को कम समझना, राइट, या मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, या मोना जी की हाइट कुछ कम है तो उनके अंदर कुछ लो फील है. ओके, या फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में वो सोचती रहती कि अपने पास कुछ भी नहीं है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ रेस्टलेस माइंड, राइट. तो मैंने मोना जी के लिए कैसा गाना बनाया, तो पर्सनलाइज सॉन्ग, पर्सनलाइज एफर्मेशन. So that song is exclusive for Mona, right? For example, मैं मोना सृष्टि का सुंदर गहना. जब मैं कहता हूं कि मैं सपोज मैं मोना हूं और मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मैं मोना सृष्टि का सुंदर गहना, आई एम प्रेशियस, ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा भाव उत्पन्न होता है, वर्दीनेस का फीलिंग आता है. मैं मोना सृष्टि का सुंदर गहना, मैं खुद को आज यूं जानने लगी, मैं खुद को आज पहचानने लगी. मैं मोना सृष्टि का सुंदर गहना. देखा मेरी जीवन की क्रिया मेरे है नियंत्रण में. मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में है, मेरा वजन मेरे काबू में है. जो आपकी डिफिकल्टी है उनको हम एफर्मेशन में लाएं. 10 minutes. जैसे 10 minutes. मेरे पास समय, Just in some other call, but I'll definitely call you before you. कोई बात कर रहा थी तो मेरे पास शायद समय की कमी है. फॉर एग्जांपल तस्नीम जी को शायद समय की कमी है, और तस्नीम जी का अगर गाना बनता है तो वो एफर्मेशन में क्या कहेंगी कि मेरे पास बहुत समय है और मैं मेरे समय का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करती हूँ. ये अगर बार बार आप मन को दोहराती है, अपने से नहीं होता है, इसलिए हेडफोन लगा दिए, कान में हेडफोन लगा दिए और वो सारे एफर्मेशंस मेरी आवाज में मैं रिकॉर्ड करता हूँ आफ्टर मेडिटेशन, उसका गीत भी बनाता हूँ. तो हम कई फिल्मों के गाने गाते रहते, तो हम अपना खुद का गाना क्यों न गाए, है ना. तो उसमें मेरी अच्छाइयां हैं, उसमें मेरे लिए एफर्मेशंस है, राइट. तो इसकी वजह से मेरे ऊपर मैं इन्वर्ट होते जाता हूँ और मेरे लिए मेरी अच्छी भावनाएं बढ़ते रहती है. उसकी वजह से न्यूरोकेमिस्ट्री की वजह से मेरे सारे शरीर में अच्छे भाव उत्पन्न होते हैं. मेरा जो भी मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से होता है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है. मेरी मेमोरी, मेरा कामनेस बढ़ने की वजह से मेरी मेमोरी भी बढ़ने लगती है.
मेरी हियरिंग एबिलिटी, मेरी जो भी आंखों की एबिलिटी है, वो सारी एबिलिटीज बढ़ते जाती है, क्योंकि मैं जो रूट है उसके लिए काम कर रहा हूँ। सो मैंने आज आपको सिर्फ 2 इसकी झलक बताई। जैसे मराठी में मैंने अभी बीच में एक वैशाली जी करके मैडम आई थी, उनके लिए कुछ गाना बनाया था कि वैशाली वैशाली मी आनंदाने फुलली, मी स्वतःवर प्रेम कराया लागली, माझ्या जीवनाची शिल्पकार मीच आहे, मी आनंदी आहे, निरोगी आहे, समृद्धीने श्रीमंतीने आरोग्याने नटली, वैशाली वैशाली मी आनंदाने फुलली, मैं मोना सृष्टि का सुंदर गहना, मैं तस्नीम, मैं प्रेम की तस्वीर, मैं आनंद की तस्वीर। सो मेनी थिंग्स। तो इसमें ये इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए आपका पैटर्न, हर एक व्यक्ति का पैटर्न अलग है। उनसे बात करके आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, निगेटिव पॉइंट्स क्या है, उनका पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके, मेरी एक क्वेश्चनरी है, उस क्वेश्चनरी के जरिए मैं सब आपसे बातचीत करता हूँ, और उसके बाद जाके मैं एक कस्टमाइज आपका सॉन्ग बनाता हूँ। वो सीरियल का टाइटल सॉन्ग हम सुनते हैं, तो सुरेश जी का टाइटल सॉन्ग सुनिए, इंद्रपाल जी आप आपका टाइटल सॉन्ग सुनिए, अरुण जी आप खुद का शीर्षक गीत सुनिए, हितेश जी आप खुद का टाइटल सॉन्ग सुनिए। लेकिन ये गाना आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगा, आपको आपकी खूबियां बताएगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, और इससे अगर आप मॉर्निंग वॉक को जाते हैं या मेडिटेट करते हैं, तब यह नेचुरल अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जैसे रात को सोते हुए और सुबह जल्दी उठते हुए अगर आप इसको 5-10 मिनट सुनते हैं, तो 41 डेज अगर आप इसको सक्सेसिवली यूज करेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपके हार्ट रेट पर, आपके थॉट रेट पर, सभी पर इसका असर आप महसूस करेंगे। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके कुछ चार्जेस हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। उन चार्जेस के अलावा मैं एक जरूरी बात आपको बोलने जा रहा हूं कि ये जो मैंने प्रोग्राम आपके सामने किया, तो मेरी ये तमन्ना है कि जो लोग मन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, हर एक को मन है, ऐसा कोई नहीं कि जिसके मन में पीड़ा नहीं है, राइट? लेकिन मेरा काम है, मैं आप जैसे लोगों के पास आकर आपके मन का दुख दूर नहीं कर रहा हूं। मैं जैसे जाता हूं, रूरल एरिया में जाता हूं, किसान है या किसानों की महिलाएं हैं कि जो विडोज है काफी, मैं आपको कुछ लिंक्स शेयर करूंगा, आप उसे देखिए, तो आप देखेंगे कि इतने इतने बूढ़े, इतने इतने गरीब लोग, उनकी आंखों पर इतनी रोशनी और इतनी खुशी, वो मेरे साथ गा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये काम मैं करते रहता हूँ वहां पर जाकर, और ना इसमें मैंने गवर्नमेंट की सहायता मांगी, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई होता ही नहीं मेरे ख्याल से कि जाएगा कोई पर्सनल आदमी को कॉन्ट्रैक्ट करे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सारी योजनाएं होती है, तो वो तो अपना काम नहीं है, आर्टिस्ट हूँ, मेरे मन में योजना आई और मैंने खुद ने कर डाली। तो इस काम में अगर आपको लगता है कि आप कुछ हाथ जुटाना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम के बाद आपके मन में जो भी आएगा, from 5 rupees to 5,000 or anything, you can devote that, you can donate that amount. Even I too contacting one NGO, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं, हम लोग खुद जाकर आपको इसके जो एविडेंसेस है, इसकी जो चीजें है, आपको टीवी पर, साम टीवी पर, जी टीवी पर मिलेंगे, आप देख सकते हैं, या गूगल पर मिलेंगे। मैं जस्ट आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप इसको जो चाहिए आप इस कॉन्सेप्ट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, आपको ये नहीं करना है कंट्रीब्यूट या डोनेट, तो आप दूसरी बात कर सकते हैं कि आप आपका कस्टमाइज आप प्रोडक्ट ले सकते हैं मेरे से, ये गाना आप मेरे से बनवा सकते हैं कि ये आप प्रोडक्ट लेंगे, तब जाके आपको अगर लगता है कि अच्छा है,
तो आप पे कर सकते हैं। उसका उपयोग भी मैं इसी काम के लिए करता हूँ। अभी तीसरी बात, आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, संजय गीते सोर्स म्यूजिक, SANJAYGITE। अभी इसमें सभी चीज मैं माइंड म्यूजिक के लिए नहीं डाल रहा हूँ। मेरा माइंड पावर ट्यून्स, मन शक्ति संगीत, इसका मुझे अलग से चैनल करना है, इसका मुझे अलग से कुछ काम खड़ा करना है। अभी इस चैनल पर आपको बॉलीवुड के गाने भी मैंने गाए हुए हैं, ओम नमः शिवाय का जब भी आपको मिलेगा, सभी है उसमें, सभी मसाला उस चैनल पे है। लेकिन फिलहाल आप मेरे अलग अलग गाने उस पर सुन सकते हैं, ताकि आप मेरे से संपर्क बना सकते हैं। उसमें शायद अपने चैनल पे मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह है ना, डिस्क्रिप्शन, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट्स है, वो सब चीजें है, या कमेंट में भी आप डाल सकते हैं मेरा। मैं या मेरा अभी भी आपको नंबर शेयर कर सकता हूँ। हाँ जी बोलिए। अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। और बोलिए, इसमें कोई फॉर्मल चीज है नहीं, जैसे मन में आया तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी के मन में दुविधा आई, कोई तनाव आया, कोई स्ट्रेस आया, तो आप बिंदास मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ एक गोली आपको दूंगा। एक नंबर तो बता दीजिए आपका पहले। जी, संगीत की गोली मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे नंबर पास वही बताइए। मेडिकल है। संजय तो जी मेरा नंबर है 750 राइट, 774499 और लास्ट में 7 राइट। मैं फिर से पढ़ता हूँ, 750774499 राइट। एक सवाल पूछे संजय जी, ये जो बहुत पीपल हु हैव एंजाइटी और डिप्रेशन जो जिनको रहता है, तो उनके जो कस्टमाइज सॉन्ग है वो उनको ऐसे केसेस आपने हैंडल किए हैं? बहुत सारे। अच्छा, बहुत सारे, क्योंकि वो क्या जी बोलिए। नहीं, जिनको ऐसा माइल्ड डिप्रेशन रहता है वो क्या होता है, थोड़े महीने ठीक रहते हैं, फिर थोड़ा सा लो हो जाते हैं, फिर आते हैं। तो मैंने ये जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम उनको एज अ बर्थडे गिफ्ट उनके बारे में जो सॉन्ग बना के आपको उनको दें, या कभी भी गिफ्ट दें उनको, तो मेरे हिसाब से तो बहुत फायदा हो सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छा सुझाव है। मेरे मन में बर्थडे के हिसाब से कभी नहीं आया था। थैंक यू सो मच। वो रोज ही गोली खाते हैं, कभी डॉक्टर एक गोली बढ़ा देता है, कम कर देता है, पर गोली तो है, तो पर उससे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती है। नहीं रहती। हाँ, इसमें मैंने कहता हूं कि उनको टैबलेट नहीं खानी चाहिए, बिकॉज वी डोंट वांट देम टू गो डीपली इनटू डिप्रेशन, बट टू अपलिफ्ट योर स्पिरिट एंड मेक दैट डे बेटर डे। आई एम श्योर म्यूजिक थेरेपी जो आपने बताई शुड वर्क। नहीं, ऐसा नहीं है गोली नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन खानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ खानी चाहिए, पर कम से कम डोज खाना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। जैसे एक गोली मेडिसिन जो है और एक गोली म्यूजिक की है। यहाँ पर अगर 4 गोलियां हैं और साथ में म्यूजिक आया तो 3 हो जाएगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, वही ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि बंद हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल ठीक है। कुछ गलत बोलना ठीक नहीं, लेकिन इतना है कि क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। ये जो रिजुविनेशन ऑफ सेल्स है ना, ये म्यूजिक के जरिए डेफिनेटली होता है, रिजुविनेशन। और ये रिजुविनेशन, अपनी सेल्स मर जाती है, फिर वो मरने के बाद फिर नई आती है, तो ये जो जर्नी है उनकी, तो इसके लिए म्यूजिक अपने आप में एक अच्छी दवाई है, राइट। तो इसके लिए जिनको ऐसा लगता है कि अपने जीवन में बदलाव चाहिए, उन लोगों से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। भले उनके पास पैसे हो ना हो, वो मुझे पे करे या ना करे, आई एम देयर। क्योंकि मैंने मेरे जीवन का ये मिशन बनाया है कि मुझे अगर गला है तो मेरा उसका कुछ गले का कुछ उपयोग होना चाहिए। मेरे पास अगर कुछ म्यूजिक की प्रतिभा है तो उसका कुछ उपयोग होना चाहिए, नहीं तो फिर जाते हुए एक सोच आ सकती कि यार मैंने क्या किया, जीवन में क्या किया। तो डेफिनेटली मैं ये करना चाहता हूँ, लोगों के जीवन में खुशी देखना चाहता हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए जैसे बहुत सारे लोग लीडर बनते हैं, उनका बहुत सारा नाम होना चाहिए,
मुझे ऐसी कोई चाहत नहीं बची है, क्योंकि इसमें मैंने स्पिरिचुअल के बारे में भी बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ काम किया है। तो स्पिरिचुअल बातों में ना कुछ भी ऑब्जेक्ट रहता नहीं, ना ही गोल्ड रहता है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट रहता है, ना कोई रिलीजन रहता है, ना कोई कुछ भी नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है। Yes, और सब जी। कुछ है। अभी जाते जाते आपको एक लाइन सुना के जाता हूँ, 0 and 9, 0 और 9. I am 0 and I am 9. 9 is a complete number. 9 is most, 9 के आगे कुछ भी नहीं है, 9 के आगे सिर्फ रिपीटिशन है। आपने अगर 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 का टोटल मारेंगे तो 3 + 6 is 9, 18 का टोटल मारेंगे तो 8 + 1 is 9, और कोई भी संख्या आगे करेंगे 125, तो 2 का रिपीटिशन है, 5 का रिपीटिशन है, ओके। 675, 675, इट इज जस्ट रिपीटिशन, 9 के आगे कुछ नहीं है। तो अपनी फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी में बुद्धा की फिलोसॉफी है 0, लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, लाइफ इज नथिंग। और दूसरी फिलोसॉफी है वेदों की, वो कहते हैं कि लाइफ इज कंप्लीट, लाइफ इज फुल। लेकिन 0 भी फुल ही है, ये साइकिल है, वो भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, राइट। तो हमें बस इस कंप्लीशन के साथ जीना है कि आई एम ह्यूमन बीइंग, आई एम कंप्लीट, आई एम वर्थ। बस इसके आगे मेरे आई एम बीइंग अलाइव, ये तो इतनी बड़ी बात है, इतनी सुंदर बात है। और आई हैव सच अ वंडरफुल मशीन विथ मी, मैजिकल मशीन। आई कैन सिंग, आई कैन वॉच, आई कैन लिसन, आई कैन ब्रीथ। इससे ज्यादा और कुछ चीज मेरे ख्याल से जीवन में नहीं है। ये सब अपनी मन ने बनाई हुई, बढ़ाई हुई ग्रीड्स है बाकी सारी। लेकिन ये तो बस, अरे मुझे दिखता है, वाह क्या मस्त है, मैं सुन पा रहा हूँ, वाह ग्रेट, मैं कैसे डाइजेस्ट कर लेता हूँ, इतनी टांगे खा लेता हूँ चिकन की, फिर भी सुबह सब गायब। कौन करता है भाई, रात भर कौन पीसता है, मेरा पेट कौन दबाता है, पता नहीं। मेरे टकलों पर बाल कैसे आ जाते हैं, कौन खींचता है, रात भर मेरे बाल कोई खींचता है, अरे बढ़ जाते हैं। इससे ज्यादा बड़ी मैजिक क्या चाहिए लाइफ में। फिर भी हम सोचते रहते यार ये नहीं, बहुत लाइफ फुल ऑफ कठिनाइयां, ये और वो, कुछ नहीं है। तो मैंने मेरे तरीके से मैंने काम शुरू किया है। मैंने मेरी काठी उठा ली है। गोवर्धन आपको मालूम है, वो पर्वत श्री कृष्ण भगवान ने उंगली पे उठाया था, तो उन्होंने उसको एक उंगली लगाई थी, तो बाकी सभी लोगों ने अपनी अपनी काठियां लगाई, तो मैंने भी अपनी काठी लगाई है। काठी को क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में? स्टिक। हाँ, हिंदी में काठी, लकड़ी, काठी बोलते हैं। लकड़ी, लाठी। मैंने अपनी लाठी लगाई है इस जीवन के गोवर्धन को, वो लाठी है सुरों की लाठी। मैंने अपना काम शुरू किया है, आप अपनी अपनी लाठी उठाइए और चल पड़े, ठीक है। चलो सभी को धन्यवाद देता हूँ। On that wonderful note, if with your permission, can I narrate a little bit one thing which yes sir, mind? because we have already run a little over time. One maybe short just thing. 1 or 2 questions. Yes sir, please go ahead. One small boy was looking at himself without any clothes, and he shouts at his mother that, "Mama, you have been telling me I'm this, I'm that, but I just had a look at myself and I'm quite all right." So whatever Sanjay ji said, I just had a look at myself. छोटा सा लड़का होता है कि मामा I'm quite all right. तो आपने आज हमको सबको ये बताया कि you made us look at ourselves and we are quite all right. हमारी सांस चल रही है, कान चल रहे हैं, नाक चल रहा है, सिर पर बाल है, सब कुछ है। तो whatever our wives may tell us, we are quite all right. We have so much to be grateful for. दो म्यूजिकल लाइन से बस let us end with that. राग भैरवी है। सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति
सन्मति दे भगवान, शांति दे सबको भगवान, शांति दे सबको भगवान। सारी खुशियाँ सबको मिली, सारी खुशियाँ सबको मिली, सबको सन्मति दे भगवान। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे साई, हे नानक, ओ जीसस, हरि ओम। शांति शांति शांति। ठीक है, थैंक यू सो मच स्वामी। मेरी मदद Thank you, चाहिए, thank you. कहीं पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो, कोई गाना रिकॉर्ड करना हो तो जरूर मुझे बताइए। मैं टाइटल सॉन्ग्स, जिंगल्स, एडवर्टाइजिंग सॉन्ग्स सारे रिकॉर्ड करता हूँ मेरे स्टूडियो में। और लता मंगेशकर, शंकर महादेवन, सभी लोगों के साथ मैंने काफी काम किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Lakshmi. Thank you, sir. Lakshmi, Yes, sir. with that, Yeah. we can close the session. Yes, Thank you, sir. everybody, for attending. Thank you. Thank you, everyone. Good night. Good night. Good night.